this just share. I'll share my PPT. I've got this online MongoDB terminal. I'll show practicals too. Now, this is what your assignment is. I'll share all the PPT of your practicals too. Now, we'll be learning two things, that is indexing and aggregation. Now, indexes support the efficient execution of queries in MongoDB. Now, आप लोग बताओगे कि how we can prove this efficiency. So, I'll show you a practical demonstration first, and then we'll understand the concept of this indexes. Now what I have done is I have created a collection which has only one entry, that is roll number 1. Now what I was just trying, I'll create one table. I'll create my collection, create collection. My collection name is user. मैम आपका स्क्रीन प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है. अरे fine, visible? Yes. I could not. Is it visible what I am typing? Yes, ma'am, it's visible. Okay, fine. Now what I'll do is going to create a collection. My collection name is user. Clear? And what I'm going to use is I'll use for loop I is equal to 0, I less than 10,000, I plus plus. Okay. Based on this for loop, I'll use db dot insert db dot my collection name is user dot insert. Now in insert, I have to assign roll numbers or user ID. I'll write user ID is my key, and for value I am putting I. समझ में आ रहा है? मुझे 10,000 रिकॉर्ड डालना था. So it's a object oriented programming, so we can use for loops. I have used for loop, and I have in one stroke I am inserting all 10,000 records in my user table. That is user ID 1 2 3 4 assign हो जाएगा. If you want to add name, you can do that also, but again I'll require some other for loop. So this is my query. I've run this query. Now if I want to get how many records are present with my collection, what I'm going to do is db.user.find. अब find करने से क्या होगा? The things will be displayed. You are getting my point. How many records I have inserted? 10,000. And अगर मैं IT press करती जाऊंगी, see they are asking you type IT. So IT type करने से I'll get more records जो मेरे screen पे नहीं जाएंगे. So is it online server? Some problem is arising for me. But if you are working with normal your terminal, you will get that all 10,000 records are been inserted. Okay. Now what happens is this is big collection. Now if I want to search a specific entry, that is db dot my table, my collection name is user dot find. Now I am finding a specific entry, that is id. Sorry, it's a user id. It's a user id column, user id जिसका 7,000 है, वो user id का डेटा मुझे डिस्प्ले होना चाहिए. I got user ID 7,000 वाला रिकॉर्ड, बट इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ है कि ये 7,000 वाला रिकॉर्ड ढूंढने के लिए हाउ मच टाइम इट हैज कंज्यूम्ड. गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या किया, एक कलेक्शन बनाया, उसमें मैंने 10,000 यूजर आईडी स्टोर कर दिए. नाउ आई एम आइडेंटिफाइंग 7,000 वाला यूजर आईडी. तो मुझे सर्चिंग कितना लगा, तो व्हाट टाइम आई एम गेटिंग ये मुझे नहीं बता रहा. ये क्वेरी क्या करेगा, सिर्फ यूजर आईडी जिसका 7,000 है वो मुझे डिस्प्ले करके देने वाला है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम यूज db डॉट यूजर आईडी डॉट फाइंड. अभी सेम क्वेरी, बट आई विल यूज द डिस्क्रिप्शन जो मैंने एक फंक्शन बताया था आपको, explain. I am using dot that thing explain. यहाँ पे देखो, 1 second. Depends on version, different output.
ये 3.2 वाला वर्जन है। अब 3.1 वाला वर्जन को यूज कर रहा होगा ना, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी, जब मैं एक्सप्लेन बोलती हूँ तो ये मुझे ना टाइम दिखाता है। हाँ, आई एम नॉट गेटिंग दिस ऑन माई टर्मिनल। आप टर्मिनल पे ट्राई करते हो क्या? कोई तो एक ट्राई करो। ये 10,000 रिकॉर्ड डाल दिया, फिर यू आर सर्चिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, यू विल बी गेटिंग एन आउटपुट। अच्छा, कोई ऑनलाइन है जिसके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है टर्मिनल, वो अपना स्क्रीन शेयर करेगा। ये फ्री टर्मिनल पे द प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। I'll stop my present. Somebody please share your screen. कौन शेयर कर रहा है? Who is going to share? राहुल, are you there? कार्तिक, आपकी स्क्रीन शेयर करोगे या योगेश्वरम? Yes, ma'am. हम्म, वो मैं ऑनलाइन टर्मिनल यूज कर रही हूँ ना, तो मुझे उसमें क्लियर आउटपुट जो बताना है वो चीज नहीं दिख रही, मिसिंग है। योगेश्वरम कंट्रोल प्लस करो ना। और एक बार करो। नाउ इट्स प्रॉपरली विजिबल। हाँ, what I am going to do is create a collection db dot create collection, ठीक है, यूजर, उसको कोट में लो, either it should be single or double quote। हम्म, ठीक है। नाउ यू डू फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 1 से करो, i इज इक्वल टू 1। इंटीजर नहीं लिखा तो भी इट्स ओके, आई लेट इट बी, वो निकाल दो इंटीजर, कुछ जरूरत नहीं। आई, ठीक है, i इक्वल टू 1 कोलन i लेस देन इक्वल टू 10,000, ठीक है, i प्लस प्लस। नाउ यू ऐड db डॉट इंसर्ट यूजर डॉट इंसर्ट ना, db डॉट यूजर डॉट इंसर्ट। उस स्क्रीन को कंट्रोल प्लस करो ना, इट विल बी प्रॉपरली विजिबल। हाँ, ओके। db डॉट यूजर डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट में लिखना कर्ली ब्रैकेट, you have to put a key value pair ना, तो कर्ली ब्रैकेट where I यूजर आईडी और UID लिखो, UID कोलन आई, इंसर्ट का क्लोज, कर्ली ब्रैकेट और फॉर लूप क्लोज, फॉर लूप का कर्ली सेमीकोलन। इट विल टेक टाइम टू इंसर्ट 10,000 या आपने कुछ तो 1 लाख कर दिया। It will take time to insert all these records. Once it is been inserted, it will show you output. इसका कैपेसिटी कितना है आपके? 1 लाख रिकॉर्ड स्टोर होता है, ठीक है। योर ऑल 1 लाख रिकॉर्ड्स एंड बीन स्टोर्ड। सी नाउ फाइंड वन थिंग, db डॉट जिसका यूजर आईडी जिसका यूजर आईडी कोई तो एक मैक्सिमम वाला वैल्यू दो, 9,000, पुट सेमीकोलन। we got this record। now same arrow की यूज करो आप वाला, एंड डॉट सेमीकोलन के पहले डॉट देके यू पुट एक्सप्लेन। एक्सप्लेन फंक्शन है, ओपनिंग क्लोजिंग। सी, ऊपर जाना, नहीं, यू आर गेटिंग सेम, आई एम यूजिंग सेम वर्जन, आप भी ये
एक चीज ध्यान में रखना कि जब अपन एक्सप्लेन बोलते हो ना, तो ये कुछ वर्जन जो प्रीवियस वर्जन थे ना, वहां पे आपको दिखता था कि एक इस रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, प्लस 9,000 रिकॉर्ड है ना, तो ये पूरा 1 लाख रिकॉर्ड स्कैन करता है, एंड डॉक्यूमेंट स्कैन कितना है, तो वो सब दिखाता है। एंड देन यू विल आइडेंटिफाई, अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स नहीं लगाया तो मुझे क्या हो रहा है कि 10,000 रिकॉर्ड्स तक मुझे सर्च करना ही पड़ रहा है। सी इंडेक्स फिल्टर सेट फॉल्स है, इंडेक्स लगाए नहीं इस पे। अभी आप इंडेक्स अप्लाई करोगे, देन योर यूजर आईडी जो 9,000 है उसको सर्च करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है। दैट इज व्हाट द एफिशिएंसी ऑफ अप्लाइंग इंडेक्सेस। नाउ आप क्या करो, डीबी डॉट, नीचे आइए, नीचे आओ, यस योगेश्वरम। अब ये लिखना डीबी डॉट डॉट यूजर डॉट बराबर है इंश्योर इंडेक्स, ई एन, इंश्योर इंडेक्स का आई कैपिटल ब्रैकेट में। आपको अभी यूजर आईडी पे इंडेक्स अप्लाई करना है, तो यू राइट कर्ली ब्रैकेट यूजर आईडी कोलन कोलन, ठीक है। 1 लगाओगे तो इंडेक्स अकॉर्डिंगली टू असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई होगा, एंड अगर आप -1 करोगे तो इंडेक्स अप्लाई होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, ओके, सेमीकोलन। यू गॉट, नाउ इंडेक्सेस हैज बीन अप्लाइड। अभी अगर उसी रिकॉर्ड को मतलब एरो की करो और सेम रिकॉर्ड को सर्च करने की कोशिश करो, नाउ यू विल गेट एन, नहीं नहीं एक्सप्लेन रहने दो, उसका भी आउटपुट इसमें वर्जन का डिफरेंस है, जो वर्जन मैं यूज करती थी। अभी इसको ढूंढने के लिए फॉर गेटिंग दिस रिकॉर्ड, हाँ एग्जीक्यूशन स्टार्ट है क्या, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओमकार इज सेंडिंग सम क्वेरी, ट्राई दिस एग्जीक्यूशन स्टैट्स। योगेश्वरम, हाँ, वो वाला क्वेरी ट्राई करके देखो, क्योंकि उसमें है ना दिखता है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू हैव बीन स्कैन। ऊपर जाइए। हम्म, अभी देखो यहाँ पे हाउ मेनी कीज आर बीन एग्जामाइंड, ओनली वन, एंड हाउ मेनी टाइम इज एस्टिमेटेड, मतलब मुझे कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट मतलब 0 सम मिली सेकेंड्स आई रिक्वायर्ड। ये हो गया आफ्टर अप्लाइंग इंडेक्स, करेक्ट, ये बराबर है दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड। कितने रिकॉर्ड्स उसने एग्जामाइन किया, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आफ्टर अप्लाइंग इंडेक्सेस। अभी ये सेम क्वेरी नीचे आइए योगेश्वरम, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन, कि अगर मुझे रिकॉर्ड ढूंढने के लिए आई विल रिक्वायर ओनली वन अटेम्प्ट टू सर्च द रिकॉर्ड। जाइए, हाँ, अभी डीबी डॉट यूजर डॉट ड्रॉप इंडेक्स आई कैपिटल एंड राउंड ब्रैकेट यूजर आईडी, कर्ली ब्रैकेट में यूजर आईडी, नहीं यू यू स्मॉल है आपका, कोलन 1, ठीक है। अभी हमने इंडेक्सेस निकाल दिए, ठीक है। अभी आप सर्च करो, हाँ, नाउ सी यू गॉट 1 लाख रिकॉर्ड है, लेकिन उसने 0 से <1 बोला था, तो फॉर गेटिंग वन सिंगल रिकॉर्ड हाउ मेनी टाइम इट्स मिली सेकेंड्स कितना हो गया, उसका एस्टिमेटेड टाइम है, एस्टिमेटेड 2 मिली सेकेंड्स के अराउंड उसको टाइम लगा। एंड इफ यू सी हाउ मेनी रिकॉर्ड्स दे हैव स्कैन्ड, इट्स लुकिंग एज मतलब टोटल डॉक्स एग्जामाइंड इज ऑल 1 लाख, करेक्ट। तो ये फायदा है आप अगर इंडेक्स अप्लाई करते हो नहीं करते हो। थैंक यू ओमकार, वो आपने बताया एग्जीक्यूशन स्टैट्स, क्योंकि मैंने ओल्डर वर्जन पे ट्राई किया तो एक्सप्लेन मेथड सीधा सा आउटपुट देती है।
ओके फाइन, दिस समझ में आया वाई वी आर लर्निंग इंडेक्स, कितना बेनिफिट मिला एक रिकॉर्ड ढूंढने के लिए। अगर इंडेक्स नहीं अप्लाई किया तो आपको 1 लाख रिकॉर्ड्स चेक करना पड़ता है, and if you are applying index you have to get that record only in single attempt. That is what the benefit of using index. Clear? Any doubt with this? तो हमने what we have seen, how to apply index, how to drop my index. Clear? Now हम लोग उसका theory पढ़ते हैं. योगेश्वर हम stop करते हो क्या presenting? I'll ask you again. ठीक है, तो indexes supports the efficient execution of queries in MongoDB. Now how many different ways of indexes? Single field index. सिंगल फील्ड मतलब जैसे मैंने एक ही कॉलम पे इंडेक्स अप्लाई किया, आप मल्टीपल फील्ड्स को कंबाइन करके यू कैन हैव कंपाउंड इंडेक्स. Then you can have multi-key indexes. Compound index includes more than one field of the documents in a collection. Multi-key indexes, then multi-key indexes is the index on a array field. है ना, आपका हॉबीज है तो आपको हॉबीज में इंडेक्स अप्लाई करना है उस कॉलम पे, लेकिन हॉबीज का इट्स अ कलेक्शन ऑफ एरे, तो उस टाइप का अगर आपका की है तो देन यू कैन यूज मल्टी की इंडेक्सेस. जियो स्पेशल मतलब जो लोकेशन बेस्ड है, जैसे महाराष्ट्र है तो एमएच लिखते हैं, है ना, तो लाइक दैट यू कैन राइट द जियो स्पेशल indexes. Then text indexes supported search of string content in the document. मतलब आप कोई पैटर्न मैचिंग से इंडेक्सेस अप्लाई करोगे या समथिंग बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग, जैसे ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले, दैट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स यू कैन अप्लाई. देन नेक्स्ट इज हैश इंडेक्स. हैश इंडेक्सेस मेंटेन्स बेस्ड ऑन द हैशिंग कंसेप्ट. जैसे आपने हैशिंग में देखा ना, यू हैव सम हैश फंक्शन, आप मॉड बाय 10 करते हो, सो मॉड बाय 10 करके आपको एक सिंगल डिजिट मिलता है, देन यू कैन मेक अ 0 to 9 buckets, है ना. So these are different types of indexes. Now we don't have to look for this. Index के properties क्या क्या है? Unique होना चाहिए, then sparse index होना चाहिए. How to create an index using create index. ये एक method है create index. आपको जिस कॉलम पे इंडेक्स अप्लाई करना, वो कॉलम नेम इज नथिंग बट की नेम एंड उसको 1 और -1. तो यहाँ पे बोलते हैं कि 1 अगर यूज कर रहे हो तो यू आर अप्लाइंग इंडेक्सेस बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, एंड इफ यू अप्लाई -1 तो डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग करके इंडेक्स स्टोर हो रहा है. समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट इज यूजिंग, मतलब आप क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए. आई कैन क्रिएट अ सिंगल इंडेक्स. सी यहाँ पे दिख रहा है. सो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल इंडेक्स. मैंने अभी जैसे यूजर आईडी पे क्रिएट किया. कंपाउंड इंडेक्स मैंने क्रिएट तो किया, लेकिन आप आई हैव DOB1 एंड देन जिप कोड. अभी आप मुझे बोलोगे कि ये DOB असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है, तो कैसे होता है? पहले डेट ऑफ बर्थ असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होता है, लेकिन अगर सेम डेट ऑफ बर्थ होंगी देन जिप कोड के अकॉर्डिंगली वो डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा. समझ में आ रहा? देन नेक्स्ट इज यूनिक इंडेक्स. दिस इज हाउ यूनिक मतलब इंडेक्सेस पे अगर आपको यूनिक इंडेक्स चाहिए, एक कॉलम पे एक ही इंडेक्स हो, मतलब दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइंग, तो यू कैन राइट यूनिक कीवर्ड एंड मेक इट प्रॉपर्टी एज ट्रू. बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता. ठीक है. देन स्पार्स इंडेक्स, लाइक दिस स्पार्स की प्रॉपर्टी आपको ट्रू करना है. सो दिस जनरली वी डोंट यूज. ठीक है, एंड वी डोंट हैव दिस इन अवर सिलेबस टू. नाउ वील यूज सिंगल इंडेक्स. यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स करके एक मेथड है, ये भी इंडेक्स क्रिएट करती है, या फिर आप उसकी जगह इंश्योर इंडेक्स लिख सकते हो. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स. क्रिएट इंडेक्स और इंश्योर दोनों का काम सेम. नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको इंडेक्सेस देखना है, हाउ उसका स्टैट्स देखना है, तो आप यू कैन राइट db.collection.get indexes. तो आपको समझ में आएगा कि उसका कैसे इंडेक्स अप्लाई, कौन से अकॉर्डिंगली इंडेक्सेस अप्लाइड हुए हैं, है ना. तो दैट ऑल यू विल गेट एन इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडेक्स, और यू कैन गेट अ स्टैट्स ऑफ दैट. यू कैन टाइप दिस एंड यू कैन सी कि इंडेक्स का आउटपुट कैसे दिखता है इन डिफरेंट फॉर्म्स. ना अगर आपको इंडेक्स को ड्रॉप करना है तो जिस तरीके से आपने इंडेक्स अप्लाई किया था उसी तरीके से ड्रॉप करना है, बट इंश्योर करना कि सिर्फ आप जो क्रिएट इंडेक्स लिखते थे उसके जगह सिर्फ ड्रॉप कीवर्ड आएगा, बाकी कोई भी फॉर्मेट चेंज नहीं करना. समझ में आ रहा है? अगर आपने इंश्योर और क्रिएट इंडेक्स लिखा ना, तो सिर्फ इंश्योर और क्रिएट का वर्ड चेंज होगा, उसके जगह आपको ड्रॉप लिखना है. अदरवाइज आपने जैसे फॉर्म में लगाया वो सब चाहिए, अदरवाइज योर क्वेरी इज नॉट गोइंग टू रन. समझ में आ रहा है टिल दिस ड्रॉप इंडेक्स?
Yes. Create an ascending and index on field name for a collection records. Then we can write this. This index can support ascending orders sort on name. नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होगा। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये आउटपुट के लिए सॉर्ट हो गया, ये डिस्प्ले के लिए। क्लियर? these are not important for us, we have already seen this. This is how we can find. now next topic is aggregation. यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है इंडेक्सेस में? हाउ टू अप्लाई इंडेक्स? कैन यू एबल टू परफॉर्म ऑन प्रैक्टिकल ऑन इंडेक्स? इंडेक्स का आपको एग्जामिनर पूछेगा कि आप बोल रहे हो इंडेक्स की इफिशिएंसी बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है? तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फॉर लूप लगा के यू स्टोर अ 10,000 रिकॉर्ड एंड देन यू कैन सर्च। तो आपको वो जो स्टैट्स वाला एक्सप्लेन वाला मेथड बताया, देन यू कैन प्रूव बाय दैट कि मैम अगर मैंने इंडेक्स अप्लाई नहीं किया तो आई गेट दिस मच टाइम टू सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड, अगर मैंने इंडेक्स अप्लाई किया तो आई गेट दिस लेस अमाउंट ऑफ टाइम to search my given record. ठीक है? In that way you can prove how the index are beneficial. Clear? Any doubt till now? What is this index? मैम हाँ एक डाउट है, बोलो। अगर हम लोगों ने अगर हमने ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इंडेक्स लगाया तो डिफरेंस क्या आता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे अभी मैंने इंडेक्स लगाया, तो हम लोग अगर हैशिंग की बात कर ले, मैं हैशिंग के बेस्ड पे इंडेक्सेस अप्लाई कर रही हूँ, तो हम लोग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 उस सीरीज में इंडेक्स अप्लाई करेंगे। तो आपका 1 किसको होगा? फर्स्ट रिकॉर्ड को। वही अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स लगा दूं, सो इट विल बी रिवर्स ऑर्डर में, मतलब 10 to 1 हो जाएगा। मैम उससे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में, सर्चिंग टाइम उतना ही लगेगा। ऐसा एट सच कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इंडेक्स अप्लाई करने का जो नंबरिंग का स्टाइल है, जैसे हम सॉर्ट करते हैं, हम सॉर्ट क्यों करते हैं डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में? डिपेंड कि हमारे को कैसे आउटपुट चाहिए, हमें हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें जो आउटपुट है ना, बड़े से छोटे देखना है या छोटे से बड़ा देखना है। सो इंडेक्स लगाते वक्त भी आप वो सॉर्टेड ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये एक अलग सी चीज है कि हैशिंग है, तो हैशिंग में मुझे 1 to 10 जाना है या मुझे 10 to 1 बकेट्स लगाना है, ये डिपेंड करेगा मेरे पे। उसका कोई मतलब ऐसा कोई यूसेज नहीं है एज सच। बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा एसेंडिंग में इंडेक्सेस लगाते हैं। ओके मैम। ठीक है? एनी डाउट टिल नाउ? हम लोगों ने यहाँ तक देखे। अब नेक्स्ट चीज है, हम लोग एग्रीगेशन देखने वाले हैं। नाउ व्हाट मोंगोडीबी सेज फॉर एग्रीगेशन इज, यस, एग्रीगेशन के लिए एग्रीगेट मतलब क्या करना है? आपको एक स्पेसिफिक एंटिटी के अकॉर्डिंगली एक ग्रुप बनाना है एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड अ सिंगल रिजल्ट। तो एग्रीगेशन में आपको बहुत मिनिमम रिजल्ट मिलता है। ठीक है? जैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अभी यूजर आईडी, मतलब हर एक यूजर आईडी, कोई तो एक कोर्स करता होगा, कोई तो ब्रांच में एडमिशन लिया, तो आपको ब्रांच वाइज रिकॉर्ड लेके आना है, या फिर आपको उसका मतलब बेस्ड ऑन एज आपको उसको कलेक्टिवली ग्रुप करना है। तो ये सब चीजें हम लोग एग्रीगेशन में देखते हैं। तो यहाँ पे मोंगोडीबी सपोर्ट्स एग्रीगेशंस आल्सो, लेकिन एग्रीगेशन की क्वेरीज डिफरेंट है। सी विल सी दिस हाउ। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एसक्यूएल में व्हाट वी हैव सीन इज एग्रीगेशन फंक्शन, मीन देखा, मैक्स देखा, ग्रुप बाय देखा, दीज ऑल आर एग्रीगेशन टाइप्स। लेकिन मोंगोडीबी के पास एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन अप्लाई एग्रीगेशन। ठीक है? अभी एग्रीगेशन ऑपरेशन प्रोसेसेस डेटा रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न कंप्यूटेड रिजल्ट। कंप्यूटेड रिजल्ट लेकिन जितना ओरिजिनल डेटा है उससे कम ही मिलता है। ठीक है? एग्रीगेशन ऑपरेशंस ग्रुप वैल्यूज ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर एंड परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन द ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप करके यू वांट टू जनरेट रिजल्ट, फॉर दैट वी यूज एग्रीगेशन। यहाँ पे फॉर एग्रीगेशन इन मोंगोडीबी यूजेस एग्रीगेट मेथड। Now aggregate method के syntax है, एक specific way है how to write this aggregate method. Then यहाँ पे ये बहुत important है, it follows some pipelining stages and can use operators for task such as calculating the average or concatenating the string. आपको यहाँ पे multiple stages में output मिलता है aggregation का. You have to follow this pipelining stages. Then you have to, in that you have to use different operators. अब मुझे पूछोगे different operators कौन से हैं? So like this, अगर मुझे काउंट करवाना है या
कुछ रिकॉर्ड्स का समेशन करना है तो आई विल यूज डॉलर सम। नाउ यहाँ पे ये ऑपरेटर्स है फॉर एग्रीगेट मेथड, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल के आगे जैसे सम है उसके आगे अगर डॉलर आता है तो समझ लेना मोंगोडीबी में दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर्स, ठीक है। देन यू हैव एवरेज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्स। देन मिनिमम डॉलर मीन, मैक्स फाइंड करना है डॉलर मैक्स, डॉलर फर्स्ट मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉलर लास्ट मतलब लास्ट record of the document. Clear? Now pipeline, there is a set of possible stages and each of those is taken as a set of documents as an input. मतलब आप लोगों को एक multiple documents है, उन सबको लेके you have to pass the result. You will get an output of the pipelining stages. अब ये possible stages कौन से है for aggregation? तो first is project. ना प्रोजेक्ट मतलब क्या, जो भी आपको डेटा सिलेक्ट करना है, मतलब आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है लेकिन उसमें से आपको सब फील्ड्स नहीं चाहिए, सो द जो भी आपको यूज करना है सिलेक्ट करना है वो स्पेसिफिक एंटिटी को प्रोजेक्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब यूज्ड टू सिलेक्ट सम स्पेसिफिक फील्ड्स फ्रॉम अ कलेक्शन। ये हो गया पहला स्टेज, दैट इज प्रोजेक्शन। ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी यूज करते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वी कैन यूज दिस, लेकिन हर इसमें ग्रुप होता है, मैच होता है, ठीक है। आपने डेटा लिया फ्रॉम बिग कलेक्शन, यू आर टेकिंग, विल सी प्रैक्टिकल ऑल दिस। आपने बहुत सारा बड़ा कलेक्शन, उसमें से आपको जो स्पेसिफिक फील्ड चाहिए दैट यू हैव टेकन, देन यू आर मैचिंग। मैच मतलब क्या, फिल्टरिंग। मुझे ग्रुप तो करना है लेकिन मेरे पास कंडीशन है, जैसे सपोज मुझे पूरे पुणे के ब्रांच वाइज स्टूडेंट्स चाहिए, कंप्यूटर में कितने लोग हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो मुझे अगर ये चीज जानना है तो मैंने प्रोजेक्ट क्या किया, सभी में से मैंने स्टूडेंट्स का नाम लिया या रोल नंबर लिया एंड उसका ब्रांच, ये मैंने क्या किया प्रोजेक्ट स्टेज में किया, लेकिन मैच क्या होना चाहिए, सिटी उसका पुणे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट फिल्टरिंग ऑपरेशन। सो इसको बोला जाता है फिल्टर करना, मतलब आपने जो कलेक्ट किया उसमें से कुछ ही चाहिए तो देन यू कैन हैव filtering operations and thus this can reduce the amount of documents। तो मुझे पूरा यूनिवर्सिटी या पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस जहाँ जहाँ डिफरेंट लोकेटेड लोकेशन में है उन सब में से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आई वांट जस्ट पुणे। सो माय मैच कंडीशन और फिल्टरिंग कंडीशन इज पुणे। नाउ आई एम गोइंग टू ग्रुप। ग्रुप मतलब एक्चुअल आपको कलेक्ट करना है, सो विल दिस डज द एक्चुअल एग्रीगेशन एज डिस्कस अबव। ये जो ग्रुप वाला क्लॉज है ये आपको ग्रुप करवाएगा, ये प्रोसेसिंग का काम करेगा। सॉर्ट मतलब आपको आउटपुट तो देना है लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में, जैसे आपको आपने मिनिमम रिजल्ट्स तो फाइंड किया सभी का, क्लास वाइज अगर मिनिमम रिजल्ट फाइंड किया तो मिनिमम का सॉर्टिंग भी होना चाहिए, या मैक्स रिजल्ट फाइंड किया तो उसका भी क्लास वाइज सॉर्टिंग होना चाहिए। सो फॉर दिस वी कैन यूज आफ्टर एग्रीगेशन वी कैन गो फॉर सॉर्ट। समझ में आ रहा? स्किप, अगर आपको कोई रिकॉर्ड्स को कुछ अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को स्किप करवाना है, जैसे मुझे पुणे आया कि उसको लेना ही नहीं, तो आई कैन यूज स्किप। आई कैन गो फॉर लिमिट ऑल्सो, डॉलर लिमिट। ये ग्रुप के ऑपरेटर्स हैं, ये हमने फंक्शंस अलग से देखे। नाउ दिस आर एक्टिंग एज एन ऑर्डर। अनवाइंड ये एरेज के लिए जस्ट यूज होता है अनवाइंड। So when using an array, the data is kind of pre-joined and this operations will be undone with this to have individual documents again. So thus the stage will be increased the amount of documents for the next stage. Unwind मतलब अगर hobby 1 है, hobby 2, hobby 3 करेगा, so इसको और भी elaborate करेगा, क्योंकि आपने array मतलब एक joining operation करके रखा, hobbies करके पूरा सबका सेट किया, लेकिन उसको भी अभी ब्रेक करना है तो यू कैन गो फॉर अनवाइंड। ये हम लोग एक एक चीज देखेंगे। हमें अनवाइंड नहीं यूज करना, स्किप और लिमिट हम यूज नहीं करते। वी जस्ट विल फोकस ऑन दिस 4 पार्ट, दैट इज प्रोजेक्ट, मैच, ग्रुप एंड सॉर्ट। ये एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद दिस। अभी देख लो यहाँ पे कलेक्शन क्रिएशन टू रन दिस प्रैक्टिकल। अगर मुझे ये प्रोग्राम रन करना है तो मेरे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म में एक डेटा होगा एंड उसको मैक्सिमम रिकॉर्ड्स है। तो जहाँ यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स है, ऑलमोस्ट 7 to 8 रिकॉर्ड्स मैंने 8 रिकॉर्ड्स से स्टोर करके रखे। नाउ आई एम हैव सब्जेक्ट 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 है एंड हर एक के मार्क्स है। नाउ सपोज माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे चाहिए सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो डीएमएस एक सब्जेक्ट है, टीओसी एक सब्जेक्ट है, ओएसडी एक सब्जेक्ट है और सीएन एक सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स क्या है, किसका है, वो मुझे जानना है। तो व्हाट विल बी माय क्वेरी इन एग्रीगेशन? See, I'll use db.student.aggregate.
पहले इसका नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी देखते हैं। अगर ऐसा होता तो आप कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, उसका मिनिमम मार्क्स, मीन ब्रैकेट में आप मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ग्रुप करके आपको क्वेरी देगा। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट मोंगोडीबी देन वील यूज db.student.aggregate, ये फंक्शन हो गया। नाउ वी आर ग्रुपिंग, सी डॉलर ग्रुप इज हियर ऑपरेटर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर ग्रुप इज एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑपरेटर। अभी हमने इसको कर्ली ब्रैकेट लिया, अब मुझे ग्रुप करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली, तो ग्रुप का क्लोज जो होगा वो लास्ट में होगा। अब ग्रुप के लिए पहली कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप करना है। लेकिन सब्जेक्ट क्या अपना, सब्जेक्ट का नाम क्या अपना वैल्यू है, लेकिन मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे की कॉलम चाहिए क्या, सब्जेक्ट। तो आप हर एक का यूनिक क्या है, हर एक डॉक्यूमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, अंडरस्कोर आईडी। तो हम लोग इसको क्वेरी कैसे लिखते हैं, डॉलर ग्रुप, उसका की एंड वैल्यू पेयर क्या है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर हम लिखेंगे एक अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को यूनिकली कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, तो डॉलर आईडी। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे डॉलर सब्जेक्ट भेजने वाले हैं, दिस डॉलर, और ये मेरे कॉलम का नाम है। डॉलर कॉलम जब मैं भेजती हूँ तो ये की बन के एक्ट होता है इंस्पेक्ट ऑफ वैल्यू। समझ में आ रहा है, जब प्रोसेसिंग करेगा तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन ये ऑपरेटर बन जाएगा उस कॉलम का नाम। तो यू हैव टू गो विथ डॉलर सब्जेक्ट, देन यू विल पुट कॉमा मार्क्स। लेकिन मार्क्स में से क्या चाहिए, ग्रुप की आईडी के अकॉर्डिंगली, लेकिन मार्क्स का क्या चाहिए, मिनिमम मार्क्स। सो फिर से डॉलर मीन, लेकिन किसके लिए, तो डॉलर मार्क्स के लिए। तो इन स्पाइट ऑफ पुटिंग द वैल्यूज वी आर पासिंग कॉलम नेम एज अ वैल्यू हियर। सो जब कॉलम नेम आपका वैल्यू बन के जाता है तो आपको आगे डॉलर लगाना, इतना ध्यान में रख लेना। गेटिंग माय पॉइंट, कॉलम का नाम, आपका जो की कॉलम नेम था ना, मार्क्स कॉलम का नाम है, दैट इज की। अभी आपका की दूसरे के लिए वैल्यू बन के जाएगा तो उसको डॉलर यूज करना है, बस इतना ध्यान में रखना है। सो नाउ आई विल गेट ये क्वेरी का इक्विवेलेंट क्वेरी इन मोंगोडीबी, आई विल राइट लाइक दिस। ठीक है, आई विल जस्ट शो यू दिस प्रैक्टिकल्स। योगेश्वरम, can you share your screen? Yes. I'll stop my presentation. आप एक रिकॉर्ड बनाना स्टूडेंट का, उसमें आप रोल नंबर, नेम, उसका ब्रांच एंड, हाँ ब्रांच एंड क्लास, ब्रांच कंप्यूटर, क्लास ACTB करना। ऐसे 10 रिकॉर्ड्स यू इंसर्ट। क्लास भी लेना योगेश्वरम, क्लास AC। एटलीस्ट 5 to 6 रिकॉर्ड्स तो भी होना चाहिए, इतना देखो, यही सेम फॉर्मेट में। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट नहीं लिया तो भी चलेगा, हम अकॉर्डिंगली ब्रांच या क्लास वाइज करेंगे ग्रुप। सेमी कॉलम। ABCD दे दो योगेश्वरम, फास्ट हो।
क्लास चेंज करो अभी। क्लास भी चेंज करो, ऐसे ही करो, ब्रांच कंप्यूटर कर दो। ठीक है योगेश्वरम, 5-6 रिकॉर्ड्स हो गए ना। ओके, अभी हम लोग लिखेंगे db डॉट स्टूडेंट डॉट एग्रीगेट। अभी हम लोग पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। सी, अभी हमें ग्रुप करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली यूज, डॉलर ग्रुप। मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे ब्रांच वाइज ये चाहिए, ब्रांच वाइज फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, कंसिडर कर लो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए। सो आई यूज डॉलर ग्रुप। हाँ, अभी कर्ली ब्रैकेट ओपन करना। अभी ये क्या हो गया की, लेकिन वैल्यू क्या है, हमें अकॉर्डिंगली अंडरस्कोर आईडी, इसको डबल कोट में लिखना, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी को कोलन, डबल कोट, ब्रांच वाइज चाहिए ना, तो डॉलर ब्रांच, कॉमा, उसका क्लोज कर देना, नहीं आईडी का ब्रांच का क्लोज, कॉमा। अभी वहां पे लिखना कि ये कर्ली ब्रैकेट डॉलर फर्स्ट, फर्स्ट FIRST फर्स्ट कोलन, नहीं हमने क्या कर दिया, ब्रांच वाइज हमें फर्स्ट चाहिए, तो हमने ये किया, ग्रुप किया ब्रांच के अकॉर्डिंगली, उसका फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। ये करो, डबल कोट, डॉलर ब्रांच ही लिखो, देखते हैं क्या होता है, डॉलर ब्रांच, उसका कर्ली क्लोज, एक कर्ली क्लोज बाकी, हम्म, एक कर्ली ब्रैकेट लगेगा योगेश्वरम, एक ग्रुप का ओपन किया ना, उसका एक कर्ली, एक एक क्लोज करो, ओके, सेमीकोलन, क्या मिल रहा आउटपुट चेक करते हैं, कहाँ पे गड़बड़ हुई, नहीं एक, योगेश्वरम ग्रुप के आ गया ये, अभी ये ना ब्रांच वाइज रिजल्ट देने वाला है बराबर, लेकिन कितने ब्रांचेस यहाँ पे, ENTC कॉम्प है, मेक है, तो एक सिंगल नहीं मिलने वाला है, तो वी हैव टू यूज एरेज। ग्रुप के आगे कर्ली ब्रैकेट है, उसके आगे चाहिए, नहीं ग्रुप के आगे, ग्रुप के आगे, इधर इधर
पीछे, सॉरी, एग्रीगेट के उधर, हाँ वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा। ये जो ब्रांच के बाद वाला क्लोज, क्लोज बाद में करो, ये सिंगल सेम कंडीशन है ना। इधर आइए, ब्रांच फर्स्ट, आईडी ब्रांच, नहीं योगेश्वरम, हाँ एक मिनट, स्टार्टिंग में आइए, हाँ वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, आगे जाओ आगे जाओ। अभी पहला जो ब्रांच मिलेगा ना उसका कर्ली क्लोजिंग हटाओ। फिर यहाँ आके एक कर्ली, 3 कर्ली बराबर है, अब एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है लास्ट में, फिर राउंड ब्रैकेट। उसके बाद ना, फ्रॉम आफ्टर दैट कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट, फाइन, एंटर। नहीं, क्या बोल रहा है? ये फर्स्ट का ओपनिंग हटाओ ना। नहीं बराबर है, ये ओपन, रुको, समथिंग मिस्ड, मतलब कुछ तो गड़बड़ है बेटा, आई चेक। हाँ योगेश्वरम, इधर आइए, फर्स्ट के आगे, जाइए और आगे, फर्स्ट, फर्स्ट का जो ओपनिंग ब्रैकेट है ना वहां पे, फर्स्ट के आगे, नहीं नहीं, इधर पीछे पीछे, कर्ली ब्रैकेट, हाँ उधर लिखना, टोटल ब्रांच वाइज टोटल, डबल कोट डालो, टोटल लिखो। ठीक है, कोलन, कोलन, बस, नाउ इट्स फाइन, क्योंकि हमने नेक्स्ट का की दिया ही नहीं, वैल्यू दिया। ठीक है, टोटल मतलब ये हम लोगों ने इसको क्वेरी को गलत लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए एटलीस्ट हम लोगों को ये तो पता चला कि ब्रांच लिखने से, ब्रांच तो उसने 3 जो डिफरेंट ब्रांचेस थी उसको ग्रुप कर लिया, मेक एक कॉम्प और एक ईएनटीसी, तो दिस इज वी गॉट। सेम क्वेरी पे जाइए, सिर्फ यहाँ पे लिखा था ना फर्स्ट, वो डॉलर फर्स्ट की जगह सम करना, सम, और वो जो लिखा है ना डबल कोट में ब्रांच, उसको हटाओ, पूरा कर्ली ब्रैकेट, वहां पे सिर्फ 1 लिखना। नहीं नहीं, डबल कोट में नहीं, सिर्फ 1। अभी ये सम करेगा, सम 1 क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर स्टार्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो काउंटर फर्स्ट रिकॉर्ड मिलता है तो 1 से स्टार्ट होगा। सी, हम लोगों के यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड में मेक के कितने लोग हैं टोटल, 2, ईएनटीसी के 2 एंड कॉम के 3, सो वी गेट दिस आउटपुट। अभी मैंने ब्रांच वाइज किया, अगर मुझे क्लास वाइज चाहिए टोटल, तो सेम क्वेरी चाहिए। हाँ, अब ब्रांच की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सिर्फ क्लास, क्लास, ब्रांच की जगह क्लास लिखना है। ठीक है, सो यू विल गेट, एफ में एक ही एंट्री है, टी में 3 है, एस में 3 है, लाइक दिस यू कैन एटलीस्ट ग्रुप, ग्रुप का एक ही पार्ट देखा हमने एग्रीगेशन में, सिर्फ ग्रुप देखा। क्लियर, समझ में आ रहा है? हमने अंडरस्कोर आईडी क्यों लिया, क्योंकि तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है उसका यूनिकनेस कहाँ से प्रूव होता है, तो डॉलर्स को, डॉलर आईडी, लेकिन डॉलर आईडी क्या है, तुम्हारा की कॉलम, लेकिन वैल्यू क्या भेज रहे हो आप, आपको किसके अकॉर्डिंगली करना है, क्लास वाइज, तो आपका क्लास क्या बन रहा है, कॉलम का नाम था, लेकिन इस क्वेरी में एग्रीगेट में वो वैल्यू बन के जा रहा है, इसीलिए अपन ने वहां पे डॉलर दिया। नाउ नेक्स्ट इज, हमने टोटल लिखा, ये कॉलम का हेडिंग है, आउटपुट में टोटल दिख रहा है, अगर मैंने अंडरस्कोर आईडी दिया तो मेरे आउटपुट में अंडरस्कोर आईडी दिख रहा है, टोटल बोला तो मेरे को टोटल ये दिख रहा है। तो ये टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो जिसके लिए आपका आउटपुट जनरेट करना है, जैसे मुझे क्लास वाइज रिकॉर्ड चाहिए तो टोटल की जगह आप क्लास वाइज डाल सकते हो, एवरेज सैलरी चाहिए तो एवरेज सैलरी लिख सकते हो, लाइक दैट यू कैन पुट। अभी यहाँ पे हमने डॉलर सम यूज किया, डॉलर सम, इट विल डू मतलब समेशन ऑफ दिस ग्रुपिंग, यस एंड 1। ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा समझने में, बट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस सिंपल 1 क्वेरी। ठीक है, एनी डाउट टिल दिस?
Yes. Any problem? हेलो योगेश्वरम, आपका स्क्रीन प्रेजेंट करो। हम्म, अभी एरो की प्रेस करना। हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला क्वेरी देखा था ना, उधर जाना, एरो प्रेस कर दो, करो और एक बार, वन मोर टाइम। हाँ, नाउ इंस्पाइट ऑफ ब्रांच वहां पे लिखो क्लास। अभी ब्रांच में सबसे पहले जिसका क्लास होगा तो दैट विल बी आउटपुट। एंटर। ठीक है, तो आपके मेक में सबसे पहले एंट्री कौन सी क्लास की थी? फर्स्ट एंड रिकॉर्ड इज फॉर एसी। ईएनटीसी में सबसे पहला वाला रिकॉर्ड टी के क्लास के लिए था और कॉम्प में टी। इन दिस वे यू कैन हैव डिफरेंट वाला क्वेश्चंस एंड यू कैन जनरेट डिफरेंट आउटपुट्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम एरो को यूज करो, इंस्पाइट ऑफ फर्स्ट वहां पे रोल नंबर लिखो। फर्स्ट रहने दो, फर्स्ट रहने दो, क्लास की जगह रोल नंबर। हाँ, अभी देखो मेक में सबसे पहला वाला स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर क्या? 40। देन ईएनटीसी में 2 एंड कॉम्प में है फर्स्ट वाला रिकॉर्ड दैट इज 23। अभी व्हाट वी हैव टू डू इज, नेक्स्ट पार्ट इज, एक बार पूरा वो कलेक्शन दिखाओ फाइंड वाला करके। क्या क्या रिकॉर्ड्स है हमारे पास? नेम है, ब्रांच है, क्लास है। ठीक है, एटलीस्ट हम लोगों ने उस पर जितने भी ऑपरेशंस कर सके। हम लोग अगर रोल नंबर का एवरेज ले ब्रांच वाइज, हम वो देखते हैं, क्लास वाइज देखते हैं। इंस्पाइट ऑफ ब्रांच हम लोग क्लास वाइज रोल नंबर का एवरेज करवाते हैं, होता नहीं है लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। आप जाइए, पहले अंडरस्कोर डॉलर की जगह आपको क्लास यूज करना है। आपका ग्रुपिंग हो रहा है लेकिन किसके अकॉर्डिंगली? क्लास वाइज। आपको क्या करना है? क्लास वाइज एवरेज फाइंड करना है, तो डॉलर एवरेज। डॉलर एवरेज किसका? रोल नंबर का। हम्म, क्या किया आपने? एवरेज एवीजी ना, एवीजी। ठीक है, हमारे पास वैल्यू नहीं थी एवरेज वाली, लेकिन हमने एफ ई के सभी रोल नंबर्स को कलेक्ट किया एंड देन वी हैव एवरेज ऑल दिस टी 15 से सी का रोल नंबर वाइज एवरेजिंग किया। लाइक दिस यू कैन डू। जैसे फर्स्ट किया वैसे लास्ट कर सकते हो, मिनिमम फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो। हाँ, अभी मिनिमम कैसे? क्लास वाइज मिनिमम रोल नंबर चाहिए, तो डॉलर मीन रोल नंबर, सबसे मिनिमम वाला रोल नंबर का जो वैल्यू होगा वो लेगा। सो 29, 2 एंड 27 क्लास वाइज। हाँ, वी आर नॉट थिंकिंग ऑन ब्रांच वाइज। अगर ब्रांच वाइज होना चाहिए तो ब्रांच, तो एटलीस्ट आपको ग्रुप वाला पार्ट तो ध्यान में आया एग्रीगेशन में। ब्रांच करो। ठीक है, गॉट दिस। मैकेनिकल में सबसे मिनिमम रोल नंबर किसका है? 40।
फाइंड, यहाँ तक क्लियर? स्टॉप कर दो योगेश्वरम प्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने मीन देखा, मैक्सिमम देखना है तो सिर्फ मीन की जगह डॉलर चेंज करके मैक्स मिलेगा। एवरेज वी हैव सीन, देन फर्स्ट रिकॉर्ड वी हैव सीन, लास्ट है, देन सम का एग्जांपल। नाउ सम करना है लेकिन किसके अकॉर्डिंगली, तो मार्क्स। सो वी कैन पुट दिस समेशन ऑफ टोटल मार्क्स ऑल्सो। यार अगर हमारे पास हमें काउंट चाहिए तो सम मतलब टोटल होता है किसी ना किसी का, हमारे पास नहीं था कोई कॉलम तो हमने किसके किया, वन किया। वन इज नथिंग बट द इटरेटर। सी जैसे हम काउंट स्टार करते हैं ना, वैसे सम डॉलर वन काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? नो मैच, अभी हमने ग्रुप करना सीखा, मैच ये ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आउटपुट लाना सीखा। अभी हमें मैच करवाना। मैच मतलब बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन यू हैव टू सेंड। जैसे यहाँ पे मैच किया लेकिन सब्जेक्ट क्या किया, मैचिंग फिल्टर कैसे, ओएसडी। तो जितना भी ओएसडी के कंटेंट होंगे वही लेके जाने वाले हम ग्रुप में। समझ में आ रहा? अभी आईडी में कुछ भी नहीं है ग्रुप करने के लिए, तो वी हैव पुट नल बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप बन ही चुका है ओएसडी का, तो हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। सो वी हैव पुट आईडी एज नल एंड काउंट इज इक्वल टू डॉलर सम। ये समझ में आ रहा है ये पार्ट? यहाँ पे हमने आईडी नल क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ग्रुप करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं, क्योंकि हमारे पास आने वाला रिकॉर्ड में सब्जेक्ट ऑलरेडी ग्रुप होके फिल्टर होके आया ही है। समझ में आ रहा है? यस। देन वी हैव काउंटेड ओनली, वी हैव पुट अ काउंट एंड हमने डॉलर सम किया, तो ओएसडी के जितने भी एंट्रीज होंगे तो वो हम लोगों को आउटपुट में दिखेगा। जैसे सिलेक्ट सब्जेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब्जेक्ट हैविंग सब्जेक्ट इक्वल टू ओएसडी, बस उसके लिए सेम क्वेरी हमने यहाँ पे फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा। नाउ लिमिट करना, स्किप करना, दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, हम देखते हैं। और नाउ आपको असाइनमेंट पे लेके जाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली बता देते। योगेश्वरम आप फिर से स्क्रीन शेयर करना। योगेश्वरम हम लोग अभी मैच और उसका देखते हैं, मैच एंड सॉर्ट। सी एरो की प्रेस करना, वो अप वाला। माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल तेजस? ओके तेजस, ड्यू टू इंटरनेट यू कुड नॉट। ठीक है, आई विल शेयर दिस ऑन योर ड्राइव नाउ। ओके फाइन तेजस, नाउ व्हाट वी हैव डन इज, रहने दो रहने दो, हाँ ग्रुप रहने दो, हाँ यहाँ तक रहने दो। इधर जाए ना, ग्रुप के आगे कॉमा, ग्रुप के आगे ओ कर्ली ब्रैकेट, उधर पीछे पीछे, सॉरी पीछे पीछे, मतलब मुझे बैक साइड में बोलना है तुम्हें। हाँ वहां पे जाना, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना, डॉलर मैच, कोलन, डॉलर मैच। हमारी कंडीशन क्या है मैच की, फिर से ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। हमें मैच की कंडीशन में क्या देना है कि जिसका क्लास टी है उन्हीं को लेना है, तो जिसका क्लास टी है वो इसका ही मैच कंडीशन लेना है। तो मैच कोलन कर्ली ब्रैकेट ओपन करना, हाँ फिर कर्ली ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे क्लास टी, क्लास कोलन टी ई, डबल कोट में टी, हाँ कर्ली ब्रैकेट इसका क्लोज करवाना, दो दो क्लोजिंग, इट विल बी हैविंग टू क्लोज, फिर कॉमा एंड देन ग्रुप हमारे पास है। लेट चेक द आउटपुट। ठीक है,
हमने सिर्फ क्या किया, जिसका क्लास टी है इतने ही काउंट हमने लिया एंड अकॉर्डिंगली हमने क्लास वाइज उसका मिनिमम रोल नंबर फाइंड किया, तो उसका क्या आंसर मिलेगा 2। क्लियर? समझ में आ रहा मैचिंग की कंडीशन कैसी होती है? हाँ, अभी कोलन करना, वही सेम क्वेरी लेना, क्लास की जगह ब्रांच कॉम्प करना। अभी कंप्यूटर में टी भी लिया, आई थिंक एसी भी लिया है। हाँ, एंटर। ठीक है, हमने कॉम्प में एफ भी है, टी भी है, एसी भी है, लेकिन हमने क्या किया, कॉम्प के ब्रांचेस में फर्स्ट ईयर में कितने रोल नंबर में सबसे मिनिमम रोल नंबर किसका है, टी में सबसे मिनिमम किसका है, और एससी में सबसे मिनिमम किसका है। तो बेस्ड ऑन की ब्रांच हमने सब में से सिर्फ कॉम्प आइडेंटिफाई किया, उस पर हमने क्या किया, ग्रुप किया। अभी ये अनसॉर्टेड फॉर्म में, हमें सॉर्टिंग फॉर्म में आउटपुट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले क्लोजिंग, हाँ कॉमा करना, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना। अभी सॉर्ट है, ये फेज है, ये स्टेजेस है। पहला स्टेज मैच, उसका कर्ली ओपन हुआ, उसका कर्ली क्लोज हुआ। दूसरा स्टेज क्या, ग्रुप, उसका कर्ली ओपन हुआ, उसका कर्ली क्लोज हुआ। अभी थर्ड स्टेज क्या, सॉर्ट, डॉलर। अब किसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है, तो आपको टोटल के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है, तो लिखना डबल कोट में टोटल। अभी टोटल आपका कॉलम नहीं, लेकिन इसके आउटपुट में टोटल आ रहा है, तो आप लिखोगे कैपिटल टी ओ टी है, नहीं कैपिटल में टी, हाँ, यस, कोलन 1, 1 असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, यस। दो क्लोज आएंगे, दो करली क्लोज और एक क्लोजिंग, एंटर। गॉट दिस? अभी अकॉर्डिंगली हमने टोटल, तो जिसका टोटल सबसे मिनिमम था उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा, तो 23, 27 एंड 29 ऊपर वाले आउटपुट में और इस वाले आउटपुट में यू विल बी गेटिंग द डिफरेंस। गेटिंग? एंड अगर मैंने सेम क्वेरी लिखना योगेश्वरम एरो की, हाँ 1 की जगह -1 करना। अभी हाईएस्ट टोटल किसका है, 29, मतलब रोल नंबर, हाईएस्ट रोल नंबर उसी क्लास का, तो देन इट विल प्रिंट आउटपुट इन डिसेंडिंग। ये सॉर्टिंग वाला स्टेज बाद में बेटर रहता है इन स्पाइट ऑफ प्रीवियस। मतलब मुझे ये बताना है कि मैच के बाद स्टेज होना चाहिए ग्रुप की, ग्रुप के बाद होना चाहिए सॉर्ट। कुछ लोग ग्रुप के पहले सॉर्ट करते हैं, उसका कुछ फायदा ही नहीं आउटपुट में। सो बेटर यू फॉलो स्टेज, पहले मैच करो, फिर ग्रुप करो एंड फिर सॉर्ट करो। एंड प्रोजेक्ट मतलब ऑलरेडी जो आपने कंटेंट लिया है, जिस जिस कलेक्शन के लिए आप काम कर रहे हो, दैट इज प्रोजेक्ट स्टेज। जैसे मैंने ये पूरा कलेक्शन यूज किया, तो स्टूडेंट कलेक्शन इज माय प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टेड थिंग। क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट टिल नाउ? सो कैन यू एबल टू परफॉर्म दिस असाइनमेंट? नाउ आपको क्या करना है, एक कलेक्शन लेना है, यू हैव टू टेक वन कलेक्शन, जिसमें एम्प्लॉय का कलेक्शन लेना सब लोग। ठीक है, उसके अंदर कौन से फील्ड आएंगे, दैट आई पेस्ट। एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय का सैलरी होना चाहिए, और एम्प्लॉय का लोग एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ये 5 कॉलम्स यू टेक फॉर अ कलेक्शन, मतलब 5 कॉलम्स ऑफ 5 फील्ड्स फॉर अ कलेक्शन यू टेक। एंड आपको उसमें एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस खुद से रेज करवाना है, एंड देन फॉर आंसर यू हैव टू राइट डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज। समझ में आ रहा है? सो उसमें सारे ऑपरेटर्स, सारे स्टेजेस एटलीस्ट यूज हो। सारे स्टेजेस मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग 3 स्टेजेस, मैच, ग्रुप एंड सॉर्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करो मिनिमम फाइंड किया तो मैक्स फाइंड करना, दैट विल काउंट एज वन क्वेरी। use as many as you can and try for each possible solution. Clear? Yes? Clear with this? What will be your practical now? So you start with your assignment. You have to take employee collection. I'll write questions here. You can just check one by one and you create simultaneously. ठीक है, योगेश्वरम you can stop your presentation. ठीक है, create employee collection. I'll write questions too. Employee का collection लेना है. Which field you have to write is EMP ID, EMP name, salary, then you can take age, then department, address. ठीक है, now my first question is display, department,
फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय का काउंट, मतलब कितने डिपार्टमेंट में कौन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। देन डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज just a second, I'm writing type.
See, I am typing one by one questions. You have to write a query for all these questions here, and same assignment you have to submit on Google Classroom. This will be your today's work. Okay, I have already given 5 queries. We'll writing sixth wala query. Almost 10 queries I have shared with you all. So you have to give answers for all these queries.